Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Welcome back to my channel, Educational Corner. Today we are going to start with a poem that is Somebody's Mother from our English NCERT book, Purvi of Standard 8 of Unit 2, Values and Dispositions. This poem is about somebody's mother and it tells us about a touching story of an old poor woman who stood helpless on a snowy street. Many people passed that street, but no one helped her. Then there was a person who helped her to cross the road. So we are going to read this poem. We are going to understand the meaning, word meanings, the explanation and the summary of this poem. The poet is Mary D'O'Brien. So let's start reading this poem. So before starting reading this poem, we are going to do certain activities which are given. Somebody's mother, let us do these activities before we read. Recall a time you helped someone, write 2 words describing. So what we are going to do, we have to write here 2 words describing words when you helped someone. जब आपने किसी की मदद करी उस समय आपने आपके माइंड उस चीज़ को याद करते हुए आपने क्या करना है 2 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स याद करने हैं. What were your feelings after you did so? आपने जब किसी की हेल्प करी तो आपको कैसा लगा? Obviously जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, ठीक है? तो you can write here happy, proud. What might have been the feelings of the person whom you helped? जिसकी आपने हेल्प करी उनको कैसा लगा होगा? So that person is grateful to us as well as relieved. Okay. Let's come to the next question. Work in pairs. Read the words given below. Circle the words you would associate with elderly person and underline the words you would associate with a school student. Share the reasons for your choices with your classmate and teacher. Now what you have to do, some words are given here. आपने क्या करना है, उन words को circle करना है जो आप एक elderly person के लिए use करेंगे, elder person के लिए, और उन words पे underline करना है जो आप एक school student के लिए use करेंगे. Okay, so let us start doing this activity. Now when we talk about strong, then we will underline it because a school student is strong. Okay, student is more strong than any elder person. Then worried is always the elderly person is more worried, so we will circle it. Then trembling मतलब हिलना, तो ज़्यादा कौन हिलता है कौन कांपता है, trembling elderly person. Then hastening, okay, hastening मतलब quick होना, school student. Firm, again school student. Then bent will be the elderly person. Then merry, school student. Gray hair means white hair, so obviously elderly person. Slow is also a elderly person. Then guide कौन कर सकता है, एक school student. And helpful, school student. So this way you have to work in pairs and you have to circle the words which associate with the elderly person and the words which associate with a school student. Okay. Let's come to the next question. Read the lines. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of winter's day. Select the suitable meaning of ragged as used in these lines. इस लाइन में, इन लाइन्स में ना ये वर्ड दिया ना ragged, इसका क्या मीनिंग है? अब यहाँ पर हमें 4 मीनिंग दिए. देखो, देयर आर अदर 4 मीनिंग्स गिवन बिलो. डिस्कस विद योर क्लासमेट. एक ragged होता है ऑफ क्लोथ्स, ओल्ड, टॉर्न, सिनोनिम शैबी, और ragged जैकेट. रैग क्या होता है, जो थोड़ी सी जो फटे होते हैं, टॉर्न या ओल्ड पुराने कपड़े. सेकेंड मीनिंग है हैविंग एन आउटलाइन, एन एज और अ सरफेस दैट इज नॉट स्ट्रेट और इवन. ठीक है, रैग हम उसे बोलते हैं ऐसा एज या ऐसी आउटलाइन जो स्ट्रेट ना हो, इवन ना हो, तो उसे हम रैग कोस्ट लाइन बोलते हैं. देन नॉट स्मूथ और रेगुलर, नॉट शोइंग कंट्रोल और केयरफुल,
प्रिपरेशन। जो स्मूथ नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, उसको भी हम बोलते हैं रैग। आई कुड हेयर द साउंड ऑफ हिज रैग्ड ब्रीथिंग। ठीक है, स्मूथ नहीं है ब्रीदिंग तो उसको हमने रैग्ड बोल दिया। देयर परफॉर्मेंस वॉज स्टिल वेरी रैग्ड। ओके, सो यहाँ भी हमने रैग्ड यूज कर दिया कि स्मूथ नहीं थी परफॉर्मेंस। देन इनफॉर्मल, वेरी टायर्ड, स्पेशली आफ्टर फिजिकल एफर्ट। जब हम बहुत भाग लेते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट कर लेते हैं तो हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो हम उसको रैग बोलते हैं। द एल्डरली मैन वॉज रैग्ड आफ्टर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ओल्ड वुमेन से एसोसिएट है ये कि द ओल्ड वुमेन वॉज ओल्ड, रैग्ड एंड ग्रे। तो रैग्ड ऑफ कोर्स वो किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स के लिए। सो हेयर वी कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये जो रैग्ड है इसका क्या मीनिंग है? ऑफ क्लोथ्स ओल्ड एंड टॉर्न। सिनोनिम शैबी और रैग जैकेट। एक्सप्लेनेशन क्या है कि इन द पोम रैग्ड रेफर्स टू द ओल्ड worn आउट एंड अपीयरेंस ऑफ वुमेन्स क्लोथिंग। वुमेन की जो क्लोथिंग है उसकी अपीयरेंस को बताया गया है यहाँ पर कि वो किस तरह से दिख रही थी। ठीक है, सो रैग्ड हेयर मीन्स ओल्ड एंड टॉर्न। Now let's read this poem and understand the word meanings as well as the meaning line by line. We will understand the meaning of the poem and we will also understand what is the summary of this poem. Let's see some word meanings. Ragged, meaning old and torn clothes. Aged, old. Uncared, which is not cared. Amid, in the middle or midst of. Throng, crowd of people, hurried to pay attention, anxious, worried, glad, happy. So let's read this poem. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of winter's day. So here the very first thing, वुमेन की अपेयरेंस जो है वो यहाँ बताई हुई है कि वुमेन कैसी है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर वुमेन कैसी है? ओल्ड है। ठीक है, वो बूढ़ी हैं। रैग्ड मतलब उनके जो कपड़े हैं वो ओल्ड भी हैं, पुराने भी हैं, टॉर्न भी हैं। ग्रे मतलब उनके बाल जो है वो सफ़ेद। तो जो वुमेन है वो ओल्ड है, रैग्ड है और ग्रे है। एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। बेंट मतलब जब ठंड होती है तो इवन हम लोग भी कई बार, जब आप भी मॉर्निंग में सो रहे होते हो, मॉर्निंग में या नाइट में जब भी आप लोग सो रहे होते हो, तो ऐसा होता है कई बार कि आपको बहुत ठंड फील होती है तो आप भी ना जो है वो हल्का सा बेंट हो जाते हो। ठीक है, तो रजाई के अंदर घुस जाते हो, ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हो, तो उसी को यहाँ पर जो वुमेन है वो तो ओल्ड है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो ठंड की वजह से उनको जब बहुत ठंड लगती है तो वो क्या हो जाते हैं? बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये जो वुमेन है ये ओल्ड है, इनके कपड़े जो है वो ओल्ड हैं, टॉर्न हैं, फटे हुए हैं और इनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं और वो बेंट हो चुकी हैं। किस वजह से? क्योंकि बहुत ठंड है, वहाँ पर विंटर है। ठीक है, तो इसलिए उनका शरीर जो है वो बेंट हो गया, झुक गया। द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। तो स्ट्रीट जो है जहाँ पर वो चल रही हैं, जो गली है या जो स्ट्रीट है उसमें वो क्या है? वेट है। वेट मतलब गीली है। विद अ रिसेंट स्नो, जब स्नोफॉल होती है, रिसेंट स्नोफॉल होती है तो जो भी सड़क होती है वो पूरी तरह से ना गीली हो जाती है। तो जिस स्ट्रीट पे वो चल रही है वो गीली है। क्यों गीली है? क्योंकि वहाँ पर अभी स्नोफॉल हुई है। एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। और एज्ड मतलब वुमेन की जो फीट है, क्योंकि वो खुद ही इतनी ओल्ड है तो उनकी जो फीट है वो भी ओल्ड हो गई। स्लो क्यों हो गई? क्योंकि उनकी एज ऐसी है। ठीक है, एज ऐसी हो, जब बुढ़ापा आता है, ठीक है, उस समय क्या होता है? जब आप ओल्ड हो जाते हो तो आपकी एज की वजह से आप धीरे धीरे चलते हो। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि एक तो स्नोफॉल हो रखी है स्ट्रीट पे, और वुमेन की जो फीट है, जो उनके जो फीट है वो भी एज मतलब ओल्ड हो चुके हैं और धीरे इस वजह से वो स्लो चल रही है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रॉ। सो शी स्टूड एट द क्रॉसिंग। अब वो क्रॉसिंग पे खड़ी हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई क्रॉस करवा दे। एंड वेटेड लॉन्ग, बहुत टाइम तक उन्होंने वेट करा। वहीं खड़ी हुई हैं वो, वहाँ पर वेट कर रही हैं कि उनको कोई क्रॉस करवा दे, रोड क्रॉस करवा दे। अलोन, अकेली हैं वो। अनकेयर्ड मतलब उनकी कोई केयर नहीं कर रहा। फॉर अमिड द थ्रॉन्ग, अमिड मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, इतने लोग हैं पर वो अकेली हैं और उनकी कोई केयर भी नहीं कर रहा और वो चाहती हैं कि उनको कोई रोड को क्रॉस करवा। Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her ancient
एंशियंट आइज। तो ह्यूमन बींग्स जो वहां से पास कर रहे हैं, जो वहां से निकल रहे हैं, ठीक है, वो नॉर हीडेड मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। द ग्लैंस ऑफ हर एंशियस आइज, एंशियंस मतलब कि वरिड, वो इतनी ज़्यादा वरिड है कि उनको कोई रोड क्रॉस करवा दे तो उनकी आइज इतनी ज़्यादा, मतलब अगर हम किसी को चिंता में देखते हैं तो हमें उसका फेस देखकर ही पता लग जाता है। कभी आपके फ्रेंड्स या आपके घर में आपके ब्रदर सिस्टर बहुत चिंता में होते हैं तो आपको वरिड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको उनका फेस देख के पता लग जाता है। तो यहाँ पर वो भी बहुत वरिड खड़ी हुई हैं, उनकी आईज देखकर ये पता लग रहा है, पर उनको कोई देख नहीं रहा, उनको नोटिस नहीं कर रहा, उनकी तरफ कोई जो है वो अटेंशन पे मतलब पे हीडेड मतलब टू पे अटेंशन नहीं, उनकी तरफ कोई ध्यान दे रहा। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। अब एकदम से क्या हुआ, डाउन द स्ट्रीट मतलब जैसे उसी स्ट्रीट में, विद लाफ्टर एंड शाउट, लाफ्टर मतलब हंसी की आवाज़ और शाउट मतलब ज़ोर से बोलने की आवाज़, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, ग्लैड मतलब हैप्पी, ठीक है। तो खुशी खुशी जब छुट्टी होती है, तो आपको भी पता है जब छुट्टी होती है तो सारे कितना खुश हो जाते हैं। तो इसी तरीके से स्कूल की एक छुट्टी हुई, एक स्कूल की जैसी छुट्टी हुई तो कुछ बच्चे जो है शोर मचाते हुए बाहर स्ट्रीट में आ गए, ठीक है। Came the boys like flock of sheep, hailing the snow piled wide and deep. तो केम द बॉयज मतलब जो बॉयज हैं जो स्कूल से छूटे हैं अभी, जिनकी छुट्टी हुई है, वो फ्लॉक ऑफ शीप, जो भेड़ होती है, फ्लॉक ऑफ शीप ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो वो कैसे आए हैं, फ्लॉक ऑफ शीप की तरह, जैसे भेड़े जो है ना वो ग्रुप्स में चलती हैं, फ्लॉक में चलती हैं, ठीक है। उसी तरीके से बॉयज भी जो है अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे आप छुट्टी के वक्त बातें करते जाते हो, उसी तरीके से वो जो है वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, उसी स्ट्रीट में जा रहे हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, जो स्नो है उसके साथ खेलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट पे पूरी तरफ से अभी अभी स्नोफॉल हुई है, तो वो स्नो के साथ हाथ में पकड़कर उनको खेलते हुए, एक दूसरे के साथ जो है वो बातें करते हुए, स्नो के साथ खेलते हुए वो वहां से जा रहे हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर कि एक वुमेन की अपीयरेंस बताइए कि वुमेन है जो ओल्ड है, उनके कपड़े टॉन है और वो उनके बाल वाइट हैं और वो ठंड की वजह से ना थोड़ा सा झुक गई हैं, और उनकी जो फीट है, उनकी जो फीट है वो भी बहुत एज मतलब वो बहुत ओल्ड है, इस वजह से वो बहुत धीरे चल रही हैं, क्योंकि उस स्ट्रीट पे अभी अभी जो है वो स्नोफॉल हुई है और वो स्ट्रीट वेट है। वो चाहती हैं कि उनको कोई रोड क्रॉस करवा दे, इसके लिए वो वहाँ बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, पर वहाँ पर इतने लोग वहाँ से निकलते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उसी समय एक स्कूल की जो है छुट्टी होती है, वहाँ से कुछ बच्चे बॉयज़ निकलते हैं, लाफ्टर मतलब हंसते हुए, शोर मचाते हुए और बर्फ़ के साथ खेलते हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ वर्ड्स हैं। हैसेंड मीन्स क्विकली, मीक मीन्स क्वाइट, टिमिड मीन्स शाय, merry means happy, gayest means happiest. Pass the woman so old and grey, hasten the children on their way. अब pass the woman मतलब woman वहाँ जहाँ पे वो woman खड़ी हुई है, ओल्ड वुमेन खड़ी हुई हैं, ठीक है, उनके हेयर भी जो है वो ग्रे है मतलब वाइट है, तो वहाँ से वुमेन जब पास करती है, ठीक है, पास द वुमेन मतलब वहाँ से जब वो जो वुमेन है वो वहाँ खड़ी हुई हैं, बच्चे वहाँ से निकलते हैं उनको देख के, हैसेंड मतलब जल्दी जल्दी निकल रहे हैं वहाँ से अपने वे से। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टिल। तो किसी ने, नॉर ऑफर्ड मतलब किसी ने उनको हेल्पिंग हैंड नहीं दिया, उस ओल्ड वुमेन से बच्चे जो हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं, उस ओल्ड वुमेन को पास करके निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, अपने रास्ते जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, पर किसी ने भी उनको एक हेल्पिंग हैंड नहीं दिया। सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टिल, सो मीक मतलब वो इतनी क्वाइट है, टिमिड मतलब वो बहुत शाय है, और अफ्रेड टू स्टिल मतलब वो उस स्ट्रीट में हिल भी नहीं पा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो बहुत ज़्यादा डर रही हैं कि कहीं, अब वो डर क्यों रही हैं इसका आगे आंसर मिलेगा हमें, कि उनको डर किस बात का था, ठीक है। तो वो डर रही हैं कि मैं अगर हिलूंगी तो क्या हो जाएगा। तो मीक मीन्स क्वाइट, वो बहुत क्वाइटली खड़ी हुई हैं। टिमिड मतलब शाय, वो किसी से हेल्प नहीं मांग रही हैं, ठीक है। शाय मतलब वो हेल्प मांगने में भी उनको शर्म आ रही है, ठीक है, क्वाइटली खड़ी हुई हैं, ठीक है। अफ्रेड टू स्टिल मतलब कि एक जगह से जो है क्रॉसिंग से हिलने के लिए भी उनको डर लग रहा है। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street.
तो अब उनको क्या लग रहा है, डर क्यों लग रहा है उनको? डर इससे लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं किसी कैरेज के व्हील्स उनके ऊपर ना चढ़ जाए, या हॉर्स की कोई फीट, मतलब जो घोड़े के जो पाँव होते हैं वो उनके ऊपर जो है ना, क्राउड में इतना क्राउड है, इतने क्राउडी स्ट्रीट है वो, कि ऐसा लग रहा है कि एक तो स्लिपरी भी है। स्लिपरी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अभी अभी स्नोफॉल हुई है तो वो वेट हो गई है। तो उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी के कैरेज के व्हील्स मेरे ऊपर आ जाए या हॉर्स की फीट आ जाए। और क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, मतलब जो क्राउड है वहाँ पर, और इतना सारा क्राउड है, ऐसा ना हो कि वो जो है वो हॉर्स की फीट के नीचे दब जाए। और जो स्ट्रीट है वो इतनी स्लिपरी है चलने के लिए कि उनको तब डर लग रहा है कि कोई वो फिसल ही ना जाए। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ, एकदम से एक मेरी ट्रूप मतलब हैप्पी ट्रूप, मतलब एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप आया, गेस्ट मतलब हैप्पीएस्ट लेडी ऑफ ऑल ग्रुप, मतलब एक ऐसा ग्रुप आया जो बहुत ही हैप्पीएस्ट ग्रुप था। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो। तो यहाँ पर एक बॉय की बात की गई है जो इस ग्रुप में एक हैप्पीएस्ट बॉय है, लैड मतलब हैप्पीएस्ट बॉय है इस ग्रुप का। वो 2 मिनट के लिए रुका, पॉज किया मतलब रुका, बिसाइड हर उनके पास आके रुका, उनके साइड में आके खड़ा हो गया, और उसने क्या विस्पर किया, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, अगर आपने रोड क्रॉस करनी है तो आई विल हेल्प यू टू क्रॉस द रोड। ठीक है। तो जो वुमेन है वो बहुत ही ओल्ड है, वो ग्रे है, मतलब उनके वाइट हेयर है, और जो चिल्ड्रन है, हैसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, तो वो क्विकली जो है, जो बच्चे हैं वो अपने रास्ते जा रहे हैं, उनको बिना देखे पास करके वुमेन को बड़े जल्दी जल्दी जा रहे हैं। किसी ने उनको हेल्पिंग हैंड नहीं दिया, और जो वुमेन है वो बहुत ही मीक है, क्वाइट है, शाय है, और उनको डर भी लग रहा है कि कहीं कोई कैरेज के व्हील्स या हॉर्स की फीट उनको क्राउड में नीचे ना दबा दे या फिर वो स्लिप ना हो जाए। ठीक है। तभी एक मेरी ट्रूप वहाँ से निकलता है, एक उसमें जो एक हैप्पीएस्ट जो एक लैड मतलब एक बच्चा है, बॉय है, वो 2 मिनट के लिए रुककर उनके साइड में जाके खड़ा होकर उनसे पूछता है कि आई विल मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा क्रॉस करने में, अगर आप जो है रोड क्रॉस करना चाहते हो तो। Let's see the word meanings. Firm, strong, well content, satisfied. Her aged her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm. He guided the trembling feet along, proud that his own were uh, firm and strong. So her aged hand मतलब वो इतनी बूढ़ी है, उनका जो हाथ, वो स्ट्रॉन्ग यंग आर्म मतलब वो जो बच्चा है, बॉय है, वो उसके हाथ में वो अपना बूढ़ा हाथ रखती है, यंग हाथ में अपना बूढ़ा जो हाथ है वो रखती है। शी प्लेस, ठीक है, और उन्होंने उसके हाथ में जो है अपना हाथ दिया, और किसी डर के बिना, किसी हार्म के बिना, चोट के बिना वो जो है उन्होंने हाथ अपना उसके हाथ में दे दिया। ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट, जो उनकी फीट थी ना वो क्या हो रही थी, कांप रही थी। ट्रेमलिंग मतलब कांपना। ठीक है। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये था कि वो जो बच्चा था वो यंग था, इसलिए वो खुद स्ट्रॉन्ग था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उनकी जो ट्रेमलिंग फीट थी उसको वो गाइड कर सका, चला सका। ठीक है। धीरे धीरे करके उसने उनको रोड क्रॉस करवाई। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, अब वो बच्चा जो है, बॉय जो है जिसने हेल्प करी है रोड क्रॉस करने में, वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका जो यंग हार्ट है, जो वो बहुत हार्ट जो है वो बहुत ही खुश हुआ, वेल कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। ठीक है। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं हम बहुत खुश होते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो उसी तरीके से ये बच्चा भी जो है, बॉय भी जो है, ये जो है बहुत हैप्पी है और वेल कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड है इस लेडी की हेल्प करके। शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो, फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। अब इसने क्या बोला कि ये किसी न किसी की मदर होंगी, समबडीज मदर बॉयज, यहाँ पे हमारा जो पोम है उसका ये टाइटल आ गया कि शी इज समबडीज मदर, ये किसी की मदर होंगी, और वो एज्ड हैं मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा है, ओल्ड हैं, पुअर हैं, गरीब हैं, और क्या है, स्लो हैं, एज की वजह से वो स्लो हो। Word meanings: lend means to give, bowed means to bend your head, noble means honest.
and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. So the boy is saying, boy explanation दे रहा है, अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि मैंने हेल्प क्यों करी, कि मुझे ये लगा कि किसी दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई एक फेलो, कोई एक बॉय या कोई भी पर्सन जो है वो लेंड मतलब किसी को हाथ हेल्प के लिए देना, मेरी मदर को भी कभी कोई ऐसे ही हाथ देके हेल्प करेगा रोड क्रॉस करने में, इफ़ एवर शी इज़ पुअर एज ओल्ड एंड ग्रे, अगर वो भी कभी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएंगी, गरीब हो जाएंगी, ओल्ड हो जाएंगी, या फिर वो जो है उनके बाल वाइट हो जाएंगे, वो ओल्ड हो जाएंगी जब वो, तो उनकी भी कोई इसी तरीके से हेल्प करेगा। When our own dear boy is far away, जब उनका खुद का बेटा जो है वो उनसे दूर होगा, तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आएगा जो मेरी मदर की भी कभी हेल्प कर देगा। And somebody's mother bowed low her head in her home that night and the prayer she said, और somebody's mother मतलब वो जो लेडी थी जो अपने घर सही सलामत पहुंच गई थी, उन्होंने क्या किया, बाउड मतलब अपने हेड को झुकाना, जब हम अपने हेड को झुकाते हैं तो हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने हेड के जो है वो हेड को झुकाया। इन हर होम दैट नाइट, अपने घर में उस रात को उन्होंने, एंड द प्रेयर शी सेड, उन्होंने उस बच्चे के लिए प्रेयर की, ठीक है, अपने सर को झुकाकर उन्होंने क्या की, प्रेयर की। वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, कि उस नोबल बॉय के लिए प्रेयर करी कि गॉड जो है वो उसके साथ काइंड हो जाए, हु इज समबडी सन एंड प्राइड एंड जॉय, तो जो किसी का बेटा है, प्राइड है और जॉय हैप्पीनेस जो है वो किसी के लिए हैप्पीनेस है, ठीक है, तो उसके लिए, उस नोबल बॉय के लिए जिस जो इतना नेक है, जिसने मेरी मदद करी, ठीक है, उसको उसको भगवान जो है वो हमेशा सही रखे और उसके साथ हमेशा काइंड रहे, ठीक है। So the poetess here is Mary Doe Bryan. So this was the poem, the word meanings. We have understood in this poem that there was an old poor woman who stood helpless on a snowy street. Many people ignored her, but one kind boy stopped and helped her cross the road safely. Later, the woman prayed for the noble boy who showed her compassion. So, if we talk about the poem highlights the value of kindness, empathy, and respect for elderly. It inspires students to help others and spread humanity through small but meaningful actions. Let's come to the summary of this poem. Somebody's Mother is a poem that highlights the importance of compassion and empathy, especially towards the elderly. तो किस तरीके से जो है कंपैशन और एम्पैथी, हमें एल्डरली लोगों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए वो बताया है। The poem tells the story of an old frail woman who struggles to navigate a snowy street. So this poem tells us a story about an old woman who wants to cross or navigate a snowy street. Many people ignore her plight. No one was able to see her plight. उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो सिचुएशन थी किसी ने नहीं देखी. However, a young boy steps in to offer his assistance. तो एक young boy जो है वो हेल्प करने के लिए आगे आता है. The boy's act of kindness not only helps the woman but also serves as a valuable lesson for his friends. So उसकी जो काइंडनेस थी वो सिर्फ वुमेन को हेल्प नहीं करी, इसके अलावा उन्होंने जो है फ्रेंड्स को भी वैल्यूएबल लेसन दिया. He reminds them that the old woman is someone's mother and that they should be prepared to help others in need just as someone's might one day help their own mother. तो वो सबको ये याद दिलाता है कि ओल्ड वुमेन जो है वो समवंस किसी की मदर है और हमें हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर कभी हमारी खुद की मदर भी हो सकती है. The poem emphasizes the significance of compassion and humanity in our daily lives. तो हमारी लाइफ में कंपैशन और ह्यूमैनिटी की क्या वैल्यू है ये बताती है. इट टीचेस चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स टू बी केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द एल्डरली, स्पेशली व्हेन दे आर अलोन एंड आर इन नीड. तो बच्चों को और अडल्ट्स को, ठीक है, किस तरीके से रिस्पेक्टफुल और केयरिंग होना चाहिए, किसके लिए, ओल्ड पीपल के लिए, एल्डरली के लिए,
स्पेशली जब वो अलोन हो, अकेले हो और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो. So with this, we have come to the end of this video. I hope you have understood this poem, the word meanings, the explanation and the summary of this poem. Now I'll meet you soon in my next video with the back exercise of this poem. If you are liking my videos, please do subscribe my channel and share your valuable comments with me. Thanks for watching.